Hey guys, how's it going? This channel is called CS Made Easy and my name is Akash Singh. I welcome you all to this video जहाँ पर हम लोग देखेंगे IP which is Informatics Practices for Class 11th का syllabus. Now before we begin with the course, हम लोग sessions conduct करें Class 11th के लिए. We need to understand कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं. So for that specific purpose, I have got you this video. But before we start, a quick introduction for the people who do not know me. My name is Akash Singh. I graduated from IIT Bombay as an engineer. And currently I'm working as a software engineer for a US company. Alright, so without any further delay, let's get straight to the point. In IP, अगर आपने क्लास 10th में IT 402 लिया था, तो IP for 11th is an extension of that. Why I'm saying it's an extension because आपके दो तीन चीज़ें कॉमन है यहाँ पर आपका जो RDBMS है, that is common. आपको SQL पढ़ाया जाएगा. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स जो आपको 10th स्टैंडर्ड में था, सिमिलर थिंग विल ऑल्सो बी इन 11th स्टैंडर्ड, बट उसका जो लेवल है थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ कंप्यूटर्स आर मेड, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. वन न्यू थिंग इज पाइथन प्रोग्रामिंग. नाउ सम ऑफ यू ऑलरेडी नो पाइथन क्या होता है. पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे आप कोड्स बना सकते हो, एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हो. सो दिस विल बी अ रिलेटिवली न्यू थिंग for your class 11th. And apart from that, one more new thing जो आप पढ़ने वाले हो, emerging trends. Basically it is just the new technologies जो every year new technologies launch हो रही हैं, उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा. ठीक है. So at the end of 11th grade आपको ये सब चीज़ें completely समझ में आ जाएंगी. And these are the topics where you can expect the questions to come from during your examinations. So हम लोगों ने brief overview देख लिया. Let's have a look at the distribution of marks. सबसे पहले इफ यू कैन सी 30 मार्क्स की कौन सी चीज आने वाली है आपकी, दैट इज RDBMS. नाउ इन क्लास 10th आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वर एबल टू अंडरस्टैंड RDBMS एंड दिस विल बी काइंड ऑफ सिमिलर. सिर्फ आपके जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो आपने क्वेरीज पढ़ी थी, आपको जो क्वेश्चंस आए थे, द लेवल विल बी इंक्रीज्ड अ बिट. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द बेसिक्स स्टिल रिमेन द सेम. So that was the unit 3. Looking at unit 2 which is Python. Python will be coming for 25 marks. यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दिखाया जाएगा पाइथन का, आपको वेरियस प्रोग्राम्स लिखने को बोले जाएंगे एंड आपका इवन प्रैक्टिकल्स भी होंगे. नेक्स्ट अप इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, जहाँ पर आप हार्डवेयर के बारे में पढ़ोगे, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ोगे. एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड अगर आपको कोई नया लैपटॉप और पीसी खरीदना है तो उसके स्पेसिफिक्स क्या होने चाहिए, कितना रैम होना चाहिए, कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए एंड सो ऑन. एंड द लास्ट थिंग emerging trends which is the new technologies. आप पढ़ोगे AI के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, AR and VR and so on. So all these come up to about 70 marks, but आपका जो 30 marks है that is for practical. So this is the distribution of marks for your class 11th. The first one, introduction to computer system. एक बार हम लोग देखते हैं कि आपको क्या क्या चीजें इनमें पढ़नी पड़ेंगी. So this is coming for your 10 marks. Introduction to computer and computing. Basically it's just what input devices are, what output devices are, softwares क्या होते हैं, all those common knowledge things जो आपने already पढ़ा हो सकता है if you have taken IT 402 in class 10. A new thing will be computer memory. So this is again a new topic but I think you might have a knowledge of this. जो हम लोग बोलते हैं 4 GB कितना होता है, probably 4 bytes कितना होता है, 4 MB कितना होता है, 4 GB कितना होता है. So we'll look at the units of how computer memory is stored. And the third part is software. This is like open source software हो गया, आपका paid software हो गया, the different kind of softwares which are available on the internet. किसी के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, कोई चीज़ें आपको फ्री में मिलती हैं जैसे VLC मीडिया प्लेयर. अगर आपको Adobe का प्रीमियर प्रो लेना है, you'll have to take a subscription. So we'll be looking at various kind of softwares. हम लोग OS के बारे में देखेंगे. OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स. एनी डिवाइस नीड्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम. फॉर एग्जांपल विंडोज हो गया, आपका एंड्रॉइड है, आपका मैक OS है, आपका उबुंटू लिनक्स है. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर. 10 मार्क्स क्वाइट ईजी, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट द पॉइंट वेर यू हैव टू फोकस मोर इज ऑन प्रोग्रामिंग. अगेन दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. अगर आपने स्टार्ट अच्छा किया, if you're understanding the basics properly, you will be able to do all the programs, you will be able to write all the algorithms.
सो पाइथन में आपको सबसे पहले दिखाया जाएगा हाउ टू क्रिएट अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के वेरियस पार्ट्स कौन से होते हैं, आपको कौन से कीवर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, उसमें वेरिएबल क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स क्या होता है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। if you are writing something like this, x is equal to 7, this is a mathematical equation, right? This is the equation of a vertical line at point 7. So ये सब जो आपको mathematical equations है, आप सेम चीज किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में लिख सकते हो। so this is known as a variable and this is known as a constant. so when we start taking the python sessions, हम लोग ये सब चीजें देखेंगे वहां पर। apart from that you will also look at data types. इंटीजर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, वेरियस स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, उन सब के डेटा टाइप्स हम लोग देखने वाले हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट इज एन एडवांस्ड टॉपिक आफ्टर यू लर्न द बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। आई थिंक दिस इज कमिंग इन योर टर्म 1। टर्म 2 के लिए आपको कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ x equals 7 then you have to print something. सो बेसिकली क्या है, कोई कंडीशन ट्रू होनी चाहिए जिसके आगे जाके प्रोग्राम कंटिन्यू होगा। एंड लूप्स मीन रेपिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू रिपीट अ स्टेटमेंट, इफ यू वांट टू प्रिंट 1 1 1 1 अबाउट 1000 टाइम्स, उन सब चीजों के लिए आप लूप्स यूज करते हो, ठीक है। सो दिस विल बी क्वाइट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर कंट्रोल स्टेटमेंट्स। बट even before you reach that, please make sure your basics in Python programming are awesome. ठीक है, so please don't worry if you have not studied already. We'll be beginning with the course soon. And apart from that, हम लोग देखेंगे lists and dictionary क्या होती है. These are known as data structures. So more about them when we start the sessions. Unit 3, you might be familiar with this. This is nothing but RDBMS from your IT 402. ठीक है, आपको डेटाबेस के कंसेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। नाउ दैट ओनली डिफरेंस बिटवीन 10th स्टैंडर्ड एंड 11th स्टैंडर्ड इज कि सिलेबस थोड़ा ज्यादा होगा, आपको ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, थोड़ा वेटेज ज्यादा होगा क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। सो डेटाबेस कंसेप्ट्स देखेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन टू, दिस इज नॉट देयर, सॉरी फॉर दिस। इंट्रोडक्शन टू माई SQL, आप देखोगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑल दीज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, data query language, data manipulation language. So this is nothing, just a copy of your 10th standard syllabus but in an advanced format. Unit 4, this is comparatively new. आप पढ़ोगे various kind of new technologies which are upcoming, right? आपका जो facial recognition system है वो कैसे काम करता है, that is AI, artificial intelligence. आपका 5G technology है, आपका cloud computing है. So this is more थ्योरी ओरिएंटेड। आपको लॉजिक से याद नहीं करना पड़ेगा, आपको थ्योरी ज्यादा याद करनी पड़ेगी। सो दिस इज यूनिट 4 इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड आई थिंक दिस इज कमिंग फॉर अबाउट 5 मार्क्स, ठीक है। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द थ्योरी पार्ट ऑफ द सिलेबस। नाउ लेट्स लुक एट द प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स में सबसे ज्यादा मार्क्स हैं आपके पाइथन प्रोग्रामिंग के। सो विच अगेन मेक्स मी से you have to focus more on the coding part because I think you already know queries, ठीक है। तो आप इस टाइम पाइथन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दोगे। क्वेरीज के लिए भी कम मार्क्स नहीं है, आपका RDBMS is carrying about 7 marks. So these are both practical and you also have to maintain a practical file जहां पर 14 Python programs आपको करना है and 14 SQL queries. So in total about 28 algos आपको लिखने पड़ेंगे for your 7 marks. And at the end Viva Voice जो आपका होता है, आपके टीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं and you will have to answer those. The practical marks come up to be 30 and theory come up to be 70. Alright, so this was just a quick introduction of your IP code 065 for class 11th. If you have any kind of doubts, please just comment under the video or maybe you can join the Telegram group. We'll be soon starting with the sessions for IP 065. So if you thought that this video was beneficial for you or if you want to study more about IP, CS or AI, please do not forget to like this video once. You can also share it among your friends, but please do not definitely forget to subscribe to this channel. I'll see you in the next one. Till then, stay awesome. Bye-bye.